we look at the result, which is very popular, very useful, and we are using it so many times, and it is called a chain rule. So a very popular result, and we have utilized it earlier, but now we are going for the official proof of chain rule. So chain rule says that suppose z is a function of two variables, x and y, and z has continuous partial derivatives in its domain, and so we can see that z is a function of x and y. Now what about x and y? X is a function of t, y is also a function of t. So x and y are the functions of t. So z is a function of x and y both are the functions of t. We can see the scenario here. This is the scenario. See, z goes to x and z goes to y. Z is related to both the variables x and y. But x and y are related to some other variable t. Now we want dz by dt. So we want a derivative of z with respect to t. But you can see in this figure, can you see this figure properly? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we can see that z has no direct connection with t actually. Z is related to x and z is related to y. And x and y have a relationship with t. So we can see that z has an indirect relationship with t. So if you want to go from z to t, you have to go via x and y. So we are writing dz by dt, derivative of z with respect to t. So first we go to this z to x, del z by del x, and then x to t. Or we can take z to y and then y to t. You can see here red path and green path. If you want to travel from z to t, there are two paths, you can say, red path and green path. Red path brings you to, from z to x and then x to t. And green path will bring you from z to y and y to t. So पहले red path की बात करते हैं, z to x and x to t. So z to x, ये जो first term है chain rule का, z to x and then x to t. Plus the second option is the green path. Green path is from z to y and y to t. So second part is z to y and y to t. Is the statement clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और आपने देखा होगा सेकंड चैप्टर के एंड में हमने इसकी मदद से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व भी किए थे. अब हम प्रूफ देंगे. खाली एक सवाल ये था, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो हियर वी हैव डेल z बाय डेल x और बाजू में डेल नहीं है, d है. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाई सो, व्हाई डेल हियर एंड d हियर? Any idea why do we have like this? ऐसा तो नहीं चल सकता कि चलो डेल कभी भी लगा दिया, डी कभी भी लगा दिया. Any logic? જે ડેલ છે એ આંશિક વિભાજન માટે હતો. या पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए. ओके. तो सर हम दूसरे वेरिएबल्स को इग्नोर करेंगे इसीलिए. ओ एक्चुअली z को आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको डिफरेंशिएशन z का चाहिए. अब z एक वेरिएबल वाला फंक्शन है या दो वेरिएबल वाला? दो Two वेरिएबल. variables. Okay, so whenever z is a function of two variables, we will be taking partial differentiation. तो हमने del लिया है. लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t है. व्हाट अबाउट x? x एक वेरिएबल वाला है या दो वेरिएबल वाला है? Single variable. Yeah, x is a function in a single variable t. So whenever you have a single variable function, you are using d. Whenever you have multiple variable function, you are using del. So is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. All right, all right. So now we go to the proof of this. We want to show that dz by dt will be equal to del z by del x into dx by dt plus del z by del y into dy by dt. Okay, so as we can see, z depends on x and y, x depends on t, and y depends on t. Suppose t has some value, presently some value, say t0. तो t की एक वैल्यू मेरे पास है, x है ना, वो t के ऊपर से डिसाइड होगा, तो t हमें पता चलेगा तो उसके ऊपर से x भी पता चल जाएगा, एंड सिमिलरली y also depends on t, so y भी पता चल जाएगा. अगर और x और y अगर मुझे पता चल गए तो x और y की मदद से z बनता है, तो मुझे z भी पता चल जाएगा. अगर मैंने ये t की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया, मान लो कि t की अभी की वैल्यू t है, थोड़ा सा उसे बढ़ा दिया, t की जगह t प्लस डेल्टा t कर दिया, डेल्टा t जितना बढ़ा दिया, तो कौन सी वैल्यू और भी बदलेगी? t पे कौन डिपेंड करता है? X और Y. x और y. तो अगर मैंने t की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी, चेंज कर दी, तो x की वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि x तो पूरा t के ऊपर से कैलकुलेट होता है. उसी तरह से y भी पूरा t के ऊपर से कैलकुलेट होता है. तो अगर t की जगह t प्लस डेल्टा t हो गया, तो x की जगह भी x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, y की जगह y प्लस डेल्टा y हो जाएगा. हाँ, t की वैल्यू अगर आपने 10 जितनी बढ़ाई है, तो x भी 10 जितना बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि x इज अ फंक्शन ऑफ t. हाउ डू यू डिफाइन x एज अ फंक्शन ऑफ t? हाँ, लेकिन इतना तय है कि t बदला तो x बदलेगा. तो t की जगह हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, t प्लस डेल्टा t कर देते हैं. ओके, सो वी स्टार्ट दिस वे. लेट अस स्टार्ट विथ डेल्टा t. डेल्टा t इज एन इंक्रीमेंट ऑफ t. अच्छा, इंक्रीमेंट मतलब कितना बढ़ोतरी हुई. So delta t is an increment of t. So this increment in t produces increment in x and y. t में अगर increment आया, तो x और y में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और अगर x और y में कुछ भी चेंज आया, which will produce increment in z. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर t बदला, कुछ टाइपिंग एरर्स से तो हम साथ साथ करेक्ट भी करते चलते हैं. So t की जगह अगर t प्लस डेल्टा t हुआ, so suppose delta t is an increment of t, then x and y will be changing, and suppose delta x and delta y are the increments in x and y, and resulting increment in z will be delta z. So this sentence is there. Let delta x, delta y and delta z be the increments in x, y and z respectively. कोई मुझे बता सकता है इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल या कोई इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू कोई एरर है? Let delta x, delta y and delta z be the increments in x, y and z respectively. खाली इतना L कैपिटल होना चाहिए. Okay, so are you getting this point? T becomes t plus delta t, so x becomes x plus delta x, y becomes y plus delta y, and so z becomes z plus delta z. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. All right. Now let us find out what is delta z. Now delta z is an increment in z. Okay, तो z में कितनी बढ़ोतरी हुई, that is delta z. तो बोले तो बड़ा आसान सा काम है, z की पहले वाली वैल्यू क्या थी, वो z की नई वैल्यू में से माइनस कर दो, तो ये z की ओरिजिनल वैल्यू थी, fxy was z. अब बढ़ के f x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y हो गया, तो ये नई वैल्यू में से ये पुरानी वैल्यू माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि z में कितना चेंज हुआ. सो डेल्टा z इज इक्वल टू, आपको पता है ना z और f एक ही है, z इज इक्वल टू f. तो z का चेंज यानी f का चेंज, तो f की नई वैल्यू ले लो माइनस f की पुरानी वैल्यू ले लो, यू विल गेट द चेंज इन f. So that is equal to delta z. Now what I do is I add these two terms. You can see that they are the same terms, but one is negative and one is positive, and so
दरअसल तो वही का वही रहा, हमने एक टर्म नेगेटिव किया, माइनस किया, और फिर वही टर्म बाद में प्लस कर दिया। ओके, तो दे आर इक्वल एक्चुअली. So this is number 1. Is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we focus on this part. First part. Okay. This first part, it is a difference of f actually. यहाँ पे भी f of something है, minus f of something है. You can see ये जो f minus f है, इसमें y कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है. इधर भी y plus delta y है, इधर भी y plus delta y है. खाली x कंपोनेंट में चेंज हुआ. पीछे x था, आगे x plus delta x था. तो एक मीन वैल्यू थ्योरम था. सर जी सर થોડુંક ઝૂમ કરશો પ્લીઝ. Is it fine? Oh, you must be watching on your mobile, right? યસ સર. Oh, okay. तो ये फर्स्ट पार्ट. अच्छा, हमने ये तो समझ में आया ना कि एक नेगेटिव टर्म, ये जो रेड वाला नेगेटिव टर्म ऐड किया और फिर उसे प्लस ऐड कर दिया, तो वो तो एक ही रहा है. तो दिस लाइन इज फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू सेकंड लाइन. ये तो समझ में आया ना ये इतना. हाँ सर. दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन. ये समझ में आया. खाली Yes, sir. माइनस किया और वही प्लस कर दिया. ओके. अब हम पहले टर्म पे फोकस करते हैं. दिस, तो आपको याद होगा कि एक लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हुआ करता था. डू यू रिमेंबर दैट लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम? सिंगल वेरिएबल के लिए हमने लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखा है. इट वाज fb minus fa upon b minus a equal to f dash c, अगर आपको याद है तो. कुछ ऐसा था वो, मैं आपको याद दिलाऊं. वो स्टेटमेंट ही हम लोग लिख लेते हैं. Take a little time, but it will be easier to understand. एक मिनट में ये आपको क्लियर हो जाएगा. ऐसा कुछ लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको याद आ रहा है क्या? हाँ सर. fb minus fa upon b minus a is equal to f dash c. ये हमने किया था, शायद फर्स्ट ईयर में कहीं हुआ होगा ये. तो ये fb minus fa upon b minus a is equal to f dash c होता है. अगर मैं ये b minus e जो है डिवीजन में, उसको राइट साइड में ले जाऊं तो क्या मिलेगा? fb minus fa equal to
एक्चुअली जो उपयोग करना है वो ये है। आर यू गेटिंग दिस? एफ बी माइनस एफ इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। ये एक ही बात हुई, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ही है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में देखो क्या Yes, है, sir. एफ ऑफ लेफ्ट साइड में ये है कि एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग। ठीक है, जब जब ऐसा सिचुएशन आता है एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग, तो राइट साइड में क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए आपने ये लेफ्ट साइड वाला एफ था वो हटा दिया पहले पार्ट में, इधर खाली बी माइनस ए आया है कि नहीं? तो लेफ्ट साइड में एफ था, राइट साइड में से एफ हट गया, बी माइनस ए आया, यानी अंदर का खाली डिफरेंस आया बी और ए का, लेकिन साइड में फिर एफ का डेरिवेटिव आया, राइट? ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब देखिए ये पार्ट, देखिए ये भी तो एफ समथिंग माइनस एफ समथिंग है, एफ फिर अंदर ब्रैकेट में दो चीजें हैं, माइनस एफ ब्रैकेट में दो चीजें हैं। ओके, अब देखिए कि ऊपर देखा था कि जब ऐसा होता है तो एफ हटा दो और अंदर वाले का माइनस ले लो, बी माइनस ए ले लो। तो यहाँ पे देखो ये y टर्मिनोलॉजी तो सेम है, y प्लस डेल्टा वाई, और इधर भी y प्लस डेल्टा वाई। तो y तो कांस्टेंट ही है, उसे हम नहीं ट्रीट करेंगे, लेकिन x में डिफरेंस है, इधर x है उधर x प्लस डेल्टा x है। तो क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड x, दैट इज x प्लस डेल्टा x माइनस x, कितना आएगा? Delta डिफरेंस X. ऑफ Delta X. डेल्टा x। तो देखो राइट साइड में हमने ये डेल्टा x लिख दिया, ये डेल्टा x यानी b माइनस ए हो गया, ऊपर अपना ये जो b माइनस ए था वो अभी डेल्टा x यानी डिफरेंस आ गया है। फिर बाजू में ऊपर यहाँ पे ये भी था एफ डैश सी, यानी एफ का डेरिवेटिव, तो हमने भी यहाँ पे एफ का डेरिवेटिव लिया, लेकिन क्योंकि हम एक्स कंपोनेंट को ही कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हमने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, राइट? ओके, अब ब्रैकेट में देखो y तो कम फिक्स ही था, तो यहाँ पे भी y प्लस डेल्टा वाई था, यहाँ पे भी y प्लस डेल्टा वाई था, तो यहाँ पे भी y प्लस डेल्टा वाई। ओके, हाँ, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, ये जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वाला स्टेटमेंट था, वहां पे c था। डू यू नो व्हाट इज c? व्हाट इज c? c was a number between a and b, ऐसा एक कंडीशन था अगर आपको याद है तो। डू यू रिमेंबर दिस, वेयर c is between a and b? Yes, sir. तो ये मतलब ये जो ब्रैकेट वाला c है वो ये a और b के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये हमारा अंदर वाला ये जो c है, ये c हमारे लिए है, वो किसके बीच में होना चाहिए? a था x, b था x प्लस डेल्टा x, यानी हमारा नंबर x और x प्लस डेल्टा x के बीच में होना चाहिए। x है वो हमारा a है, x प्लस डेल्टा x है वो हमारा b है, इसलिए तो ये एफ बी माइनस एफ ए बना लेफ्ट वाला। तो ये x प्लस थीटा वन डेल्टा x है, बेसिकली x इन x प्लस डेल्टा x, यानी क्या हुआ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली बोर्ड की याद हमें ऐसे सिचुएशंस में आती है, बट आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। विल राइट डाउन समथिंग, ये x है, ठीक है, x की जगह मैं x प्लस 0 इंटू x लिखूंगा तो चलेगा? यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी। ये x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय x है, ब्रैकेट करूंगा तो कंफ्यूजन। यहाँ पे है मेरे पास x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x लिख देता हूँ।
Okay, so let us focus on this. This part, ये 0 into delta x तो 0 हो जाएगा, यानी this is x only. 1 into delta x into delta x, तो ये जो है ये नंबर हुआ हमारा x. Can you see this part properly? This is x plus 0 into delta, so this is x. This is x plus 1 into delta x, so this is x plus delta x. आप मुझे कोई भी नंबर इन दोनों के बीच का आ सकते हैं जिसकी वैल्यू ये x से ज्यादा हो और इससे कम हो, x प्लस डेल्टा x से कम हो. मैं ऐसा एक नंबर लिखता हूँ, मुझे बताइए कि ये नंबर इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा. ये x प्लस 0 इंटू डेल्टा x, ये x प्लस 1 इंटू डेल्टा x, और ये है x प्लस 0.6 इंटू डेल्टा x. तो ये जो नंबर है मिडल वाला, वो लेफ्ट वाले नंबर और राइट वाले नंबर के बीच में उसकी वैल्यू आएगी क्या? यस और नो? यस, आनी चाहिए. Yes. आनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x तो तीनों जगह कॉमन है. ये 0 इंटू डेल्टा x है, डेल्टा x इज ए पॉजिटिव नंबर. ये 0 इंटू डेल्टा x है, ये 1 इंटू डेल्टा x है, तो ये 0.6 इंटू डेल्टा x है. तो देखो ये 0.6 है, वो ये लेफ्ट वाले 0 से बड़ा है, राइट वाले 1 से छोटा है. तो इससे बड़ा है, मतलब लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा है, राइट वाले नंबर से छोटा है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा. ठीक है. अगर मैं 0.6 की जगह 0.4 लेता तो ये इन दोनों के बीच में रहता क्या? Yes, sir. यस, हाँ सर. ओके. अगर मैं 0.001 लेता तो Yes sir. और इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ पे ये जो नंबर है वो कोई भी ले सकता हूँ, राइट? मानो यहाँ पे मैं 2 लेता तो तो नहीं हो पाता. वो तो नहीं होता. अच्छा, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन वो नंबर किसके बीच में होना चाहिए? 0 0 से 1 के. ओके, 0 से 1 के बीच में, मतलब मैं 0.33 ले सकता हूँ, 99 ले सकता हूँ, राइट? यस सर. Yes sir. तो हमने वही किया है एक्चुअली. अब थोड़ा ये स्टेटमेंट पे आ जाइए. यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देखें तो ये fx था, यानी कि ये x और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, उसके बीच का नंबर चाहिए था. तो ये x यानी x प्लस 0 इंटू डेल्टा x हुआ, ये x प्लस 1 इंटू डेल्टा x हुआ. तो मैंने क्या किया है, मतलब थियरम में क्या किया गया है कि ये x प्लस थीटा 1 डेल्टा x लिया गया है, यानी x प्लस सम नंबर इंटू डेल्टा x. लेकिन वो थीटा 1 क्या होना चाहिए? बिटवीन 0 एंड 1. तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी थीटा 1 डाल देता तो भी चलता. कब चलता? अगर ये थीटा 1 कहाँ होता? Zero और one के बीच. तो बस हमने वही एक्चुअली किया है यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ पे, अच्छा y कंपोनेंट तो देखना ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में. तो अभी ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा था fb माइनस fa इज इक्वल टू b माइनस a इंटू f डे c. वही रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे. fb हुआ ये माइनस f ये हुआ fa इज इक्वल टू ये हुआ डेल्टा x यानी b माइनस a, और ये हुआ जो लास्ट पार्ट है वो f डैश यानी पार्शियल डेरिवेटिव f डैश ऑफ c. मेरी जो c है इसमें ये x प्लस थीटा 1 डेल्टा x है, वो नंबर यहाँ लेफ्ट वाले x और x प्लस डेल्टा x के बीच में है. ये लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का वर्जन है 2 वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए. इज दिस क्लियर?
ये दिस इज सिमिलर टू एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ सी। ऐसा आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है? Yes, sir. ओके, तो जैसे ये हुआ वैसे ही अब आप इक्वेशन 1 देखें। ये इक्वेशन 1 है, तो इसमें हमने पहले दो टर्म लिए थे, उस पर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाया। अच्छा, ये जो लास्ट के दो टर्म्स हैं उसमें भी लाग्रांज थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन इस बार देखो x सेम है, x कंपोनेंट इधर भी x और इधर भी x, बट देयर इज ए चेंज इन y कंपोनेंट। तो अब y कंपोनेंट के लिए हमारा मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। सिमिलरली ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड पार्ट में होगा, और इसमें जो डेरिवेटिव होगा वो fy होगा, क्योंकि इसमें y कंपोनेंट में चेंज है। ओके, तो ये हुआ, और इधर भी 0 लेस देन थीटा 2 लेस देन 1 होगा। तो हालांकि ये शर्त है कि आप लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हो तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो पार्शियल डेरिवेटिव होनी चाहिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलने चाहिए। बस इधर परमानेंटली लिख ही देता हूँ ताकि आप जब ये नोट रेफर करें तो काम आएगा। ऑलराइट, तो आपको पता होगा कि हम इक्वेशन 1 में थे। ये हमारा इक्वेशन 1 था। पहले पार्ट पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाया पहले दो टर्म्स पे विथ रिस्पेक्ट टू x, लास्ट के दो टर्म्स में लगाया विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास, सो दिस इज putting the values from 2 and 3 into 1 will be getting delta z equal to this. Is this fine? This will be getting, we are simply putting values from 2 and 3 into 1. Okay, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डेल्टा t से डिवाइड करते हैं सबको। ये जो लेफ्ट साइड में डेल्टा z था वो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाय डेल्टा t, और इधर ये जो है इसको भी डेल्टा t से डिवाइड करेंगे। तो जो पहला वाला जो शुरुआत का जो ये जो डेल्टा x था, दैट विल बी डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और और यहाँ पे डेल्टा वाई जो है ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, अब दोनों साइड में वी आर टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। तो हमने लिमिट लगाया डेल्टा टी गोज टू 0 ऑन बोथ साइड्स। आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लीजिए, मैं शांति से एक्सप्लेन करूंगा जब कभी नेक्स्ट टाइम समय मिलेगा, कि जब डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी होता है और उसको जब लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 लगता है तो डेल्टाज में से d हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है। बेसिकली डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज। सो टेम्पररीली बिल्कुल रो तरीके से ऐसा याद रख सकते हैं कि डेल्टास को लिमिट लगती है तो d हो जाता है। तो लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 जो है डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी वो क्या हो जाएगा, dz बाय dt हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे राइट साइड में भी, यहाँ पे भी ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आता है और उसको भी डेल्टा टी गोज टू 0 लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, dx बाय dt। सिमिलरली ये डेल्टा y बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा,
dy by dt। ओके, अब बाकी रहा ये क्या होगा, तो हम लोग इस पार्ट को देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या होगा। दैट इज लिमिट डेल्टा t गोज टू 0 fx ऑफ दिस। ओके, हमको दिया गया है कि हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है fx वगैरह वो कंटिन्यूअस है। हमारा जो स्टेटमेंट था थियरम का उसमें दिया गया था कि z इक्वल टू fxy हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस की खास बात ये होती है कि आप लिमिट की वैल्यू अंदर डाल सकते हो। यानी यहाँ पे ये जो है दिस, तो उसमें लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 है तो डेल्टा टी की जगह 0 डाल सकते हो। कंटिन्यूटी की एक खास बात है। तो अगर डेल्टा टी 0 हो जाता है यानी टी में कोई चेंज ही नहीं होता है, टी में कोई चेंज नहीं होता है तो एक्स और वाई में भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको उसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 हो जाएगा, तो फिर अंदर ब्रैकेट में बचेगा क्या, X and Y. एक्स एंड वाई। ओके, यानी बचेगा आपके पास सिर्फ ये कि एफ एक्स एक्स एंड वाई, यानी ये एफ एक्स एक्स एंड वाई बचेगा खाली। लेकिन एफ एक्स एक्स एंड वाई यानी एफ एक्स यानी क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ और जेड तो सेम है, यानी दिस इज डेल जेड बाय डेल एक्स। तो ये हुआ हमारा डेल जेड बाय डेल एक्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट होगा डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था, इसमें ये जो डेल्टास को लिमिट लगा इसलिए डी हो गया, ये डेल जेड बाय डेल एक्स हो गया। ये सारी वैल्यूज जब हम लोग पुट करेंगे तो वी शिल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। अब आप शांति से ये रिजल्ट पढ़िएगा, ये अपनी नोट्स में जब देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बात का जो सेकंड पार्ट है वो फॉर्मल है। डेल्टा जेड एक बार देख लिया आपने, फिर डेल्टा टी से डिवाइड किया, लिमिट अप्लाई किया, डेल्टास को लिमिट अप्लाई करते हो तो डी हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन को लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट अंदर डाल सकते हो। सो दिस इज हाउ वी गेट दिस चेंज। सो not a very simple result to show without the help of blackboard, but we have tried to do so. So you read this at your convenience from our notes, and you might feel that not many things are very complicated. So आज हम यहीं पे रुकेंगे। Thank you so much. Read the theorem and tell me next time if there are any difficulties. Thank you and have a good time.